श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा। पंखी बिरख सुहावड़ा, सच चुगै गुर भाए। हर रस पीवै सहज रहै, उडै न आवै जाए। निज घर वासा पाया, हर हर नाम समाए। मन रे गुर की कार कमाए, गुर कै भाणै जे चलैं। ता अन दिन राचै हर नाए। रहाओ। पंखी बिरख सुहावड़े, उडहैं चाहों दिस जाहें। जेता उडहैं दुख घणे, नित दाजहैं तैं बिल लाहें। बिन गुर महल ना जापई, ना अमृत फल बाहें। गुरमुख ब्रह्म हरियावला, साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारियां, एक शब्द लिव लाए। अमृत फल हर एक है, आपे देखवाए। मन मुख ऊबै सुक गए, ना फल तिना छाऊं। तिना पास न बैसीऐ, ओना घर ना गिराऊं। कटियां है तै नित जालियां, ओना शब्द ना नाऊं। हुक्मे कर्म कमावणे, पईऐ किरत फिराऊं। हुक्मे दर्शन देखना, जह भेजै तह जाऊं। हुक्मे हर हर मन वसै, हुक्मे सच समाओ। हुक्म न जाने बपुड़े, भूले फिरें गवार। मन हठ कर्म कमावंदे, नित नित होहें कुआर। अंतर शांत न आवई, ना सच लगै प्यार। गुरमुखियां मुँह सोहणे, गुर कै हेत प्यार। सच्ची भगति सच रते, दर सच्चै सचियार। आए से परवान है, सब कुल का करें उधार। सब नदरी कर्म कमावंदे, नदरी बाहर ना कोय। जैसी नदर कर देखै सच्चा, तैसो ही को होए। नानक नाम वडाइयां, कर्म प्राप्त होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल चबर छतर तख्त दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी कोटान कोटान किरपा रहमत ते बख्शिश दे नाल हर रोज़ ग्लोबल गुरबाणी विचार वल्लों फेसबुक लाइव आडियो दी माध्यम दे राहीं ते व्हाट्सएप ग्रुप्स दे राहीं जो साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लड़ीवार कथा दी सेवा की जा रही है, जिस विच श्री राग दे अष्टपदियां दे हुण तक 20 नंबर शब्द तक 19 नंबर शब्द तक आपां विचार कर चुके हैं। अज दा शब्द जो आप जी ने
ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 20 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 20 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 66 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਪਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਹਾਉ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚੱਲੈ, ਤਾਂ ਆਨੰਦਿਨ ਰਾਚੈ ਹਰਿ ਨਾਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਵੇਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੇਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
जे सच की मंजिल प्राप्त करनी है, जे सदैवी सच की मंजिल ते रहना है, फिर गुर कै भाणे जो चलै। जिहड़े गुरु के भाणे विच चलते ने, जिहड़े गुरु की रज़ा विच चलते ने, तां अनदिन राचे हरनाए। अनदिन का अर्थिया हर रोज़, राचे का अर्थिया रचिया रहेगा, टिकिया रहेगा। नाम मैनू सिहारी है, अर्थिया नाम दे विच। सब कहते जे तू गुरु के हुक्म दे विच तुरेगा तां तू हर वेले परमात्मा के नाम दे विच जुड़िया रहेगा। जे अपने जीवन नूं बार बार गुरु के हुक्म ते तोरेगा, परमात्मा के हुक्म तो कदी भी बाहर नहीं होवेगा। पर इत्थे तू अपनी मन की मत कीती नहीं, ते गुरु तो दूर होया नहीं, ते परमात्मा तो तेरा रिश्ता टुट जाना है। ते सच जाने फिर हाल तो है जिवें एक यतीम बच्चा अपने माता पिता तो बिना बेसहारा हो जाता है। जे असी गुरु के हुक्म ते नहीं ना चलते, असी यतीम हैं। अज असी सारे यतीम हो चुके हैं। तुहानू चेता है, पता तुहानू इतिहास दे विच तुसी कदी विचारिया, अज दे हालात विचारे ने कि अज सिख दी इतनी कन्फ्यूजनस ने। सिख दे इतिहास तो लैके गुरपुरब मनाउण तक बड़ी ही जगह दे उत्ते बहुत कुछ कन्फ्यूज है। कारण कि असी यतीम हो गए हैं, यतीम हो गए हैं, क्योंकि साडा असी गुरु तो भरोसा छड़ दिता है, असी गुरु का आसरा छड़ दिता है तकना, असी सतगुर के हुक्म ते चलना छड़ दिता है। असी उन्हां मनुखां नूं अपने जीवन का आधार ते आसरा बना लिया है जिहड़े संसारी ने। जद तक गुरु के हुक्म ते नहीं तुरदे, पुरातन समय के ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ चढ़दी कला ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ स्टोरियां ਆਪਾਂ पढ़ते हैं ना, वो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ तो नहीं सी कदी भी टुटदे। उन्हां दे जीवन का जिहड़ा मुख अध्याय जिहड़ा सी वो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सी। वो हर गल सतगुरु कोलों पुछदे सन, गुरमता की है? गुरु की मत लैके मता करना, हुक्मनामा गुरु जी का लैना, तो जो वो हुक्मनामा आवे वो पंज प्यारे सिंह बह के उस हुक्मनामे की विचार करके उहदा मता पकाउण ते वो मता पंथ नूं दिता जावे। उहनूं कहंदे सी गुरमता। अज ते गुरमता गुरु ते विच है ही नहीं, अज ते गुरु की मत है ही नहीं। इसे करके अज साडा हाल यतीमा वर्गा हो गया है। जना खना सानू मोढे मारदा है, हर कोई आके साडे उपर आके खड़ जाता है। असी लवारिस हुंदे जा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ने कहा सी, बड़ा प्यारा बचन कहा सी, कहते जद तक ते ये गुरु के सिद्धांतां ते परपक्क चलते रहणगे, न्यारे ब्यारे हुंदे रहणगे। जिद्दण गुरु की मत त्याग देणगे, उदण चेता रखियो एक खुआर हो जाएंगे। अज असी खुआर हो रहे हैं क्योंकि असी गुरु का रस्ता छड़ दिता है, गुरु की मत छड़ दी है, गुरु की बाणी छड़ दी है, गुरु का लड़ छड़ दिता है। तो जदों आपां गुरु का लड़ छड़दे हैं ना, जिथे साडा धार्मिक जीवन गड़बड़ हुंदा है, उत्थे घरेलू जीवन भी गड़बड़ हुंदा है। मैं इत्थे फिर बेनती कर रहा, जिद्दण साडे बच्चे का जन्म होया, साडे बजुर्गां ने एक रीत बनाई, उदण ही गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाता। फिर साडी जिंदगी का हर एक कदम गुरु ग्रंथ साहिब ते चलिया। चाहिदा सी ना चलना। साडा आनंद कारज होया, फिर साडे बजुर्गां ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बिठाया, लड़के लड़की नूं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सानू 4 लावां दा उपदेश दिता। चाहिदा सी वो जीवन च फॉलो करना। ईमानदारी नाल मैं गल कहना, जे वो 4 लावां साडे प्रचारकां ने, साडे ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ने जां साडी संगत ने कह के जे ग्रंथी सिंह नहीं सुणाउंदा, कह के क्या हुंदा, भाई जी इहदी विचार करके साडे बच्चों नूं जरूर दसो। 10 मिनट होर लग जाणगे, कोई नहीं, तुसीं इहदी गल जरूर दसो। ते मैं जिथे तक गुरु तो भै विच रह के कहना, साडे घर ना टुटदे, साडे घरां दे विच औरंगजेब वर्गे ना पैदा होंदे, साडे घर गुरमुख हुंदे, साडे घरां दे विच अज भी भाई मनी सिंह वर्गे, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे ही पैदा होंदे। असी आप गुरु तो टुटे हाँ, तो जब तक गुरु तो टुटे रवांगे साडा हाल ये रहेगा। तो यही गल साहब कहते, गुर कै भाणे जे चलै। जे तू गुरु के हुक्म दे विच चलेगा ना, गुरु के भाणे विच तुरेगा, तां अनदिन तां हर वक्त राचै रचिया रवेगा, हरनाए परमात्मा दे नाल, हर वक्त परमात्मा दे तू नाल जुड़िया रवेगा। रहाओ, ये रहाओ दियां पंक्तियां ने। पहला बंद है पावन शब्द का।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ तमाम ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਖੀ ਬਿਰਕ ਸੁਹਾਵੜਾ ਸੱਚ ਚੁਗੈ ਗੁਰ ਭਾਏ। ਪੰਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਕਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਵੜਾ, ਸੁਹਾਵੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਚੁਗੈ, ਜਿਸ ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਕਦੋਂ ਚੁਗੇਗਾ? ਗੁਰ ਭਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗੇਗਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਕਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਵੇ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਸਹਿਜ ਰਹਿ, ਉੱਡੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਪੀਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਡੈ ਨਾ, ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਵੈ ਜੰਮਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਕਸ਼ੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਕਸ਼ੀ ਪੀਂਦਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਕਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੇੜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਨਿਜ ਘਰ ਅਰਥਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਅੰਦਿਨ ਰਾਚੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਅਗਲਿਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਖੀ ਬਿਰਕ ਸੁਹਾਵੜੇ ਉਡਹਿ ਚੌਂਦਿਸ ਜਾਏ। ਬਿਰਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਕਸ਼ੀ, ਉਡਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਪਕਸ਼ੀ ਮੀਨਸ ਬਰਡਸ, ਬਿਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਰੀ, ਰੁੱਖ। ਸੁਹਾਵੜੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਉਡੈ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਚੌਂਦਿਸ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪਕਸ਼ੀ ਆ ਨਾ,
ये आपो अपने शरीरां रूपी रुखां उत्ते बैठे वेखण नूं तां सोहणे लगदे हन। हर एक शरीर दे विच ये जीव आत्मा रूपी पक्षी बैठा है। पर साहिब कहंदे हुंदा की है, माइक पदार्थां दे चोग दे पिछे इन्हां दा जीवन जदों माइक पदार्थां दी कमाई पिछे तुर पैंदा, दुनियावी धन नूं इकट्ठा करन वास्ते तुर पैंदा है, फिर इन्हां पदार्थां दे चोगे पिछे ये उड़दे फिरदे हन, भाव भटकदे हन। भरम जीवन विच आ जांदा है, भटकना आ जांदी है, फिर ये आत्मा स्थिर नहीं रहिंदी, जीवन विच अडोलता नहीं आउंदी, फिर बेचैनी रहिंदी है, जीवन तड़फदा रहिंदा है। सब कुछ हो के भी मन विच परेशानी चिंता बड़ी रहिंदी है। ये तां है क्योंकि ये जीव रूपी पक्षी नूं माया दे पदार्थां दे चोगे दा रस पै गया है। हुण परमात्मा दे गुणां दा चोगा नहीं चुगदा, हुण इनू पदार्थां दे चोगे दा रस पै गया है। इसे करके ये चार दिशावां इधर उधर जिथे जी करदा है उथे भटकदा फिरदा है। जेता उडै, कमाल दे बचन ने। सब कहंदे दुख घणे नित दाजै तैं बिलाए। जेता उडे, जिन्ना उडेगा ना ये जीव आत्मा रूपी पक्षी आ जिहड़ी साडे विच लालसा बैठी, आत्मा बैठी, सब कहते ये जिन्ना भरमेगा, जिन्ना उडेगा, इधर उधर की दौड़ विच पवेगा, दुख घने, उन्हें बहुत ज्यादा जीवन दुखी होवेगा। नित दाजै, दाजै का अर्थ पता की है, सड़दे हन। तैं बिलाए, सब कहते वो जितना ही चोग दे पिछे ये जीव आत्मा रूपी पक्षी उडेगा, उन्ना ही वधीक ये दुख सहारेगा ते खिजदा रहेगा। सदा इहदा जीवन खिजिया भरिया, क्रोध भरिया, चिंता विच भरिया रहेगा, अंदरों विलकदा रहेगा। जे नहीं अज साडी हालत ते कह दिओ, असीं मत्थे भी टेकदे, बाणी भी पढ़दे हां, पर अपनी आत्मा नूं किते पुछ के वेखो कि आत्मा स्थिर आ। असीं अपने जीवन विच नहीं खिजदे। घर दे हालात क्यों विगड़े पए ने? क्यों पति पत्नी की लड़ाई है? क्यों बच्चे एक दूसरे ते भरोसा नहीं कर रहे? एक छत थले असी एक घर नूं जिहड़ा साडा अपना घर है उन्होंने भी असी उजाड़िया पिया। क्यों? क्योंकि साडे जीवन विच बहुत खिज पुणा है। असी बहुत खिजदे हां, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो खिजदे हां। ये क्यों आ? क्योंकि मन विच भटकना पै गई है। ये आत्मा रूपी पक्षी भटकना च पै गया है। इनू चोग चाहिए किहड़ा? लोकी मैनू सलामा करन, मेरे बच्चे ना सवेरे उठदियां सारे मैनू मत्था टेकन, ते बच्चे चाहुंदे साडा बापू साडे पिछे तुरे। हौमे दा कीड़ा घर विच वड़िया पिया, आहंग दा कीड़ा घर विच वड़िया पिया, बहुती सियाणप दा कीड़ा घर विच वड़िया पिया, जिन्हें सारे घर नूं अग लाई पई है, तरथली मचाई पई है, बेचैन होया पिया सारा जीवन, क्योंकि साडी अपने अंदर शांति नहीं है। चेता रखियो, प्रैक्टिकल सच कह रहा, जिस मनुख दे अपना मन भटकिया रहेगा, अपने अंदर बेचैनी रहेगी, वो सारे घर विच बेचैनी पैदा कर देगा। इसे करके वीर मेरे हो, भैन मेरी हो, नितनेम बड़ा जरूरी है, बाणी नाल जुड़ना बड़ा जरूरी है। बाणी साडे अंदर सबर पैदा करती है, बाणी साडे अंदर सिदक पैदा करती है, बाणी साडी बेचैनी नूं खत्म करती है, इस आत्मा रूपी पक्षी नूं सच नाल जोड़ती है। पर जे ये असीं इनू की करांगे, विकारां विच पा देवांगे, फिर की होवेगा? जेता उड़ै, जिन्ना ये पक्षी बेचैनी विच उडेगा, दुख घणै, उन्ना ये दुखी होवेगा। नित दाजै, नित खिजेगा, नित ये सड़ेगा अंदरों, ते बिलाए ते इहदा जीवन विलकेगा, परेशानी च रहेगा। बिन गुरमहल ना जापाई, ना अमृत फल पाए। सब कहते चेता रखियो, गुरु दे शरण तो बिना, गुरु दी मत तो बिना, गुरु दे हुक्म में चलण तो बिना इन्हां पक्षियां नूं परमात्मा दा टिकाणा नहीं दिस सकदा, परमात्मा नहीं लभ सकदा, ते ना ही इन्हां दे जीवन विच आत्मक सुख आ सकदा है। क्योंकि आत्मक सुख ते मिलना है गुरु दे हुक्म च चल के, गुरु दी रजा विच चल के। गुरमुख ब्रह्म हरियावला, साचे सहज सुभाए। गुरमुख जिहड़ा गुरु दे सन्मुख होके तुर पिया, जिहड़ा गुरु दे बचनां नूं इन बिन मनण लग पिया, जिहड़ा गुरु दी मत ते तुर पिया। ब्रह्म दा अर्थ है, सब कहंदे ऐसा कमल
हरियावला हरिया भरिया। सब कहते जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहन वाला मनुख आ ना, ब्रह्म हरियावला, वो परमात्मा दे रूप वर्गा बन जाता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, वो परमात्मा दे रूप हो जाता है। वो मानो एक हरिया भरिया रुख है। सब कहते जिहड़ा गुरु दे सन्मुख हो तुरिया, गुरु की माते हो तुरिया, वो परमात्मा का ही रूप हो गया, तो वो एक हरिया भरिया रुख बन गया। वो वडभागी मनुख फिर सदा थिर रहन वाले परमात्मा विच जुड़िया रहिंदा है, उहदे विच वो अडोल हो जाता है। फिर उहदे अंदर आत्मिक अडोलता का टिकाव आ जाता है, तो सदा वास्ते परमात्मा दे प्रेम दे विच रंग जाता है। फिर वो डोलदा नहीं, वो भटकदा नहीं। शाखा तीन निवारियां एक शब्द लिव लाए। शाखा का अर्थ है ब्रांचिस, टाणियां। तीन शाखा माया दे तीन गुण, रजो तमो सतो। सब कहते इस शरीर रूपी रुख दियां तीन जिहड़ियां ब्रांचस ने, तीन जिहड़ियां इहदियां शाखावां ने, वो किहड़ियां ने? रजो तमो सतो। एक शब्द लिव लाए। सब कहते परमात्मा की सिफत सलाह के शब्द दे विच जुड़ के, गुरु शब्द गुरु की मत ते तुर तुर के ये जीव माया दे इन्हां तीन गुणा रूपी टाणियां तो अपने आप नूं दूर कर सकता है, जो ये जीवन नूं बर्बाद कर दियां ने, ये अंदर विकार पैदा कर दियां ने। अमृत फल हर एक है, आपे देखवाए। सब कहते जिहदा आत्मक जीवन उच्चा हो जाता ना, जो आत्मा स्पिरिचुअल तौर पर मजबूत हो जाता, जो पल पल अपने जीवन नूं परमात्मा दे हाज़र नाज़र समझदा है ते अपने करैक्टर नूं, अपने अंदर सच नूं टिकाउंदा है, वो भरोसा बना लैंदा है कि केवल मैं, मेरा मालक एक है, एक अकाल पुरख है जो सदा मेरे हर वक्त नाल है। फिर उहदे हुक्म विच तुर पैंदा है। फिर अमृत फल हर एक है। फिर उन्हें समझ पै जाती है आत्मक जीवन की चढ़ती कला का जिहड़ा फ्रूट आ ना, जिहड़ा फल आ, वो केवल परमात्मा दे उपर भरोसा है, क्योंकि वही एक है, आपे देखवाए। वो आप कृपा कर दवे, रहमत कर दवे, अपने सच रूपी फल मैनू खवा दवे, ताकि मेरे अंदर संतोख आ जाए। अगलियां पंक्तियां ने, मन मुख ऊबे सुक गए, ना फल ते ना छांव। मनमुख का अर्थ है मन की मत पिछे तुरन वाले। उबे सुक गए, उबे का अर्थ है खलोते खलोते, खलोते खलोते ही, खड़े खड़े ही सुक गए, ऐन सड़ बल गए, सुक गए। ना फल ते ना छांव, उन्हां दे उपर ना कोई फल दिसदा है ते ना वो किसी दे उपर छांव करते हैं। सब कहते जिहड़े अपने मन के पिछे तुरन वाले मनुख ने ना, मानो वो रुख ने, वो ट्रीज ने जो खलोते खलोते ही सुक गए ने, सड़ बल गए ने। उन्हां दे विच ना कोई फल लगदा है, ना ही उन्हां दी छां किसी काम हुंदी है, पर वो किसी काम ही नहीं आउंदे। हुण जिहड़ा मनुख अपणियां मन आईयां मन मर्जियां दे पिछे तुरिया है, ना वो अपने माता पिता का सहारा बन सकिया, ना अपने बच्चों का। हाँ, झूठ का फल जरूर उहदे विचों नज़र आवेगा। ये प्रैक्टिकल जीवन है साडे घरां दा। गुरु साहब जिहड़ा अज दा शब्द कह रहे, अपने घरां अंदर झाती मार के देखिए, साडे अंदर भी असी वो रुख हाँ जिहड़े सड़ बल गए हाँ, सुके पे हाँ। कदी असी किसी दे काम आए, कदी किसी दे सिर उपर जाके छां बने हाँ, किसी जतीम दी, किसी अनाथ दी, भाई जे तेरा कोई नहीं आवे मैं तेरे नाल खलोता ना। असी ते सहारा भालदे हाँ, सहारा बनदे नहीं। जिदन असी सहारा एक दूजे का बन लग पे ना, जिंदगी बदल जाएगी। पर साडी जिंदगी विच सहारे भालण दी है, स्वार्थ है, साडी जिंदगी स्वार्थ ते खलोती है, सानू सब कुछ चाहिए, असी किसी दे काम नहीं आउणा। तिन्ना पास ना बैसी है, ओना घर ना गिराओ। सब कहते मैं एक गल कहना, ऐसे मन की मत पिछे लगन वाले मनुखों के कोल कदाचित कदे भी नहीं बहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुखों का अपना कोई जीवन का कर काट नहीं, इन्हां दे जीवन च स्थिरता कोई नहीं। अज ये तुहाडे नाल खलोते ने, कल पता नहीं कदों तुहाडा साथ छड़ के भज जाण, क्योंकि ऐसे मनुख जीवन का कदी भी सहारा नहीं बन पाउंदे।
कटियां तै नित जालियां ओना शब्द न नाओ। कहते ऐसे मनमुख रुख सदा ही कट्टे जाते हैं, क्योंकि सुक्के होंदे ने, सुक्किਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੱਟ ਲਈਦਾ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਹਨ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਈਐ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਉ। ਹੁਕਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹੁਕਮ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਐ ਕਿਰਤ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਜੈ ਭੇਜੈ ਤੈ ਜਾਉ। हे परमात्मा जी, तेरे हुक्म दे विच ही है, तू ही रहमत करे, इन्हां नूं अपने हुक्म ते उत्ते तोर लवें, इन्हां नूं तेरे दर्शन हो जाण ते इह सदा वास्ते तेरे चरनां विच टिक जाण। क्योंकि मैं ते समझदा ये तेरी कृपा दे विच ने, तेरी रहमत होवे ते ये जुड़ जाण। मेरी ये अरदास स्वीकार करो प्रभु जी, इन्हां नूं अपने चरनां नाल जोड़ो, इन्हां दे खते ना चितारो, इन्हां नूं अपने नाल जोड़ लो। जै भेजै तै जाऊं, जिधर नूं तू भेजदा उधर नूं ही असीं तुरदे हां। तू किरपा कर सानूं सच दे रस्ते ते तोर। हुक्मे हर हर मन वसै, हुक्मे सच समाओ। सब कहंदे जी, हे परमात्मा जी, तेरा ही हुक्म होवेगा ना ते असीं जीव तेरे नाम दे विच साडा मन टिकेगा ते तेरे विच असीं लीन हो जावांगे। हुक्म न जाने बपूड़े, भूले फिरे गवार। सब कहते जिहड़े मनुख ने ना, ये मूर्ख ने जो तेरे हुक्म नूं नहीं समझते, जो ये सोचते ने शायद जो असी कह रहे हैं उही हो रहा है। ये मनाइयां करन वाले मनुख तेरे हुक्म की बुझारत नहीं समझ पाउंदे ते नित माया दे मोह विच पए होए भटकदे फिरदे हन। मन हट कर्म कमावंदे, नित नित होए खुआर। ऐसे मनुख गुरु ते भरोसा नहीं करते, गुरु दा लड़ छड़ दिंदे हन ते अपने मन आइयां दे मन चों निकले होए धार्मिक रस्मां ते कर्म कांडां नूं करदे हन। गुरु दी मत ते नहीं चलदे। गुरु दी मत किसे कर्म कांड, किसे पखंड वाल नहीं प्रेरित करती। पर आ जिहड़े असीं मन दी मत पिछे लग के जी आ फलाने जोतशी नूं विखा लीए, आ गुरद्वारे दे विच जाके पीला वेसन चढ़ाईए, शायद इहदे नाल सुख मिल जूगा, जाके गुरद्वारा साहिब दे निशान साहिब दी कच्ची लस्सी नाल उहनूं धोईए। ये गुरु ने नहीं किया, ये साडे मन चों निकले ख्याल ने, इसे करके इहनूं मनमत किया जाता है। तो साहिब कहंदे जिहड़े मन दी मत पिछे लग के तू धार्मिक कर्म कर रहा ना, जो तू सोच रहा ईजी वे दे विच, इन्हां दे नाल नहीं सच मिलना। इन्हां ने सगों खुआरी पैदा करनी है। तू खुआर होना है, भाव अपने रस्ते तो भटक जाना है। तेरा असली रस्ता परमात्मा दे गुणां दे विच तुरना है। अंतर शांत ना आवई, ना सच लगे प्यार। सब कहते ऐसे मनुखां दे मन विच कदी भी शांति नहीं आउंदी, ना उन्हां दे अंदर सदा स्थिर रहण वाले परमात्मा दा प्यार बनता है। अगला बनता है, गुरमुखियां मूँह सोहणे, गुर कै हेत प्यार। जिहड़ियां जीव इस्त्रियां गुरु दे सन्मुख रहिंदियां ने, ऐसे गुरमुखियां दे सदा मूँह सोहणे रहिंदे, क्योंकि उन्हां दे मूँह ते विकारां दीयां चोटां नहीं हुंदियां।
गुर कै हेत प्यार, ते ਉਹ सदा गुरु ਦੇ हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, गुरु ਦੀ मत ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ सदा वास्ते गुरु ਦਾ प्यार ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ है। सच्ची भगती सच रते, दर सच्चै सचियार। ऐसे मनुख सदा परमात्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ परमात्मा हाਜ਼ਰ नाਜ਼ਰ नज़र ਆਉਂਦਾ है। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ सच रते, सच परमात्मा ਵਿੱਚ रंगे ਹੋਏ सच्चे सचियार बन के परमात्मा के दर ते प्रवान हो जाते हैं। आए से प्रवान है, सब कुल का करे उधार। सब कहते उन्हां बंदियां दा ही इस संसार विच आउणा काबूल समझो, सफल समझो, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਨਦਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੀ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸੱਚਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਕੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ सदा अटल रहन वाला, सदा थिर समझांगे, हाज़र नाज़र समझांगे, साडे काम निर्मल होणगे, असी चंगे काम करांगे। पर माड़े काम उदों करते हैं जदों ये सोचते सानू रब नहीं वेंदा। दरवाजियां नूं बंद करके, लाइटां बुझा के चोरियां करते हैं। ये वो करता है जो परमात्मा नूं अपने तो दूर समझदा है। नानक नाम वडाइयां करम प्राप्त होए। हे नानक, उसकी मेहर की नज़र नाल जिहड़ा मनुख सच दे हुक्म दे विच तुर पिया, अपने जीवन विच चंगे गुण अपना लै, ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा की बख्शिश बन गई। वो सदा वास्ते परमात्मा जी दे नाल इकमिक हो गया। सो अज दा इह पावन शब्द धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी का 20 नंबर शब्द की विचार, जिहड़ी श्री राग दीआं अष्टपदियां दे विचों तीसरा शब्द धन गुरु अमरदास साहिब जी का अज आपां विचारिया है। मकसद सिर्फ यही है कि असीं वध तो वध गुरबाणी नाल जुड़ीए, सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी का लड़ फड़ीए, ते गुरबाणी नूं अपने जीवन का आसरा ते आधार बनाइए। तां ही होणगे लोक सुखीए, परलोक सुहेले, नानक घर प्रभापे मेले। पुल गलती दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी